کرتے ہیں خدائی میں فقط یہ خاص عادت فاطمہ کی ہے، خدائی میں فقط یہ خاص عادت فاطمہ کی ہے۔ جب اس آئی کو تارے عرش سے آتے ہیں چوکھٹ پر، جہان عرش اعظم تک فضیلت فاطمہ کی ہے۔ سلامی کے لیے صبح و شام مرسل بھی آتے ہیں، سلامی کے لیے صبح و شام مرسل بھی آتے ہیں۔ رسالت کی نگاہوں میں یہ عظمت فاطمہ کی ہے۔ اگر کچھ چاہیے خالق سے دیجئے واسطہ ان کا، اگر کچھ چاہیے خالق سے دیجئے واسطہ ان کا، خدا مختار ہے لیکن عنایت فاطمہ کی ہے، خدا مختار ہے لیکن عنایت فاطمہ کی ہے۔ صدق کے چھیننے والے انہیں کیا منہ دکھائیں گے، صدق کے چھیننے والے انہیں کیا منہ دکھائیں گے، بروز حشر پیش حق شفاعت فاطمہ کی ہے، بروز حشر پیش حق شفاعت فاطمہ کی ہے۔ جہاں میں صرف 14 آئینے سب ایک جیسے ہیں، جہاں میں صرف 14 آئینے سب ایک جیسے ہیں، جسے بھی دیکھیے ہر ایک میں صورت فاطمہ کی ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ خدا کے دین پر ہرگز کبھی آنچ آ نہیں سکتی، خدا کے دین پر ہرگز کبھی آنچ آ نہیں سکتی، ازل ہی سے اسے حاصل حمایت فاطمہ کی ہے، ازل ہی سے اسے حاصل حمایت فاطمہ کی ہے۔ خدا جانے کہ کیا کیا مرتبے ہیں شہزادی کے، خدا جانے کہ کیا کیا مرتبے ہیں شہزادی کے، جسے ہم خلد کہتے ہیں ریاست فاطمہ کی ہے، جسے ہم خلد کہتے ہیں ریاست فاطمہ کی ہے۔ خدا کے دین کی ہر حالت میں ہر لمحہ حفاظت کی، خدا کے دین کی ہر حالت میں ہر لمحہ حفاظت کی، علی کی لاڈلی زینب کی سیرت فاطمہ کی ہے، علی کی لاڈلی زینب کی سیرت فاطمہ کی ہے۔ گزارا ہوتا ہے مشکل میں مگر شکوہ نہیں لب پر، گزارا ہوتا ہے مشکل میں مگر شکوہ نہیں لب پر، خدا کو ناز ہے جس پر عبادت فاطمہ کی ہے، خدا کو ناز ہے جس پر عبادت فاطمہ کی ہے۔ جنہیں آغوش میں پالا جنا کے شہزادے ہیں، جنہیں آغوش میں پالا جنا کے شہزادے ہیں، بلندی کے مراتب کے ریاضت فاطمہ کی ہے۔ خدا سے مشورہ لینے کا جو بہتر ذریعہ ہے، خدا سے مشورہ لینے کا جو بہتر ذریعہ ہے، جسے تسبیح کہتے ہیں، یہ حکمت فاطمہ کی ہے۔ خدا سے مشورہ لینے کا جو بہتر ذریعہ ہے، جسے تسبیح کہتے ہیں، یہ حکمت فاطمہ کی ہے۔ تصدق میں انہی کے رزق ملتا ہے زمانے کو، تصدق میں انہی کے رزق ملتا ہے زمانے کو، خدا رازق ہے لیکن کفالت فاطمہ کی ہے، خدا رزاق ہے لیکن کفالت فاطمہ کی ہے۔ صدا دیتا ہے رضواں در کھلا ہے اے عزادارو، صدا دیتا ہے رضواں در کھلا ہے اے عزادارو، تمہارے واسطے بے شک اجازت فاطمہ کی ہے، تمہارے واسطے بے شک اجازت فاطمہ کی ہے۔ پیدر ہے مرسل اعظم امیر المومنی شوہر،
इधर है मुरसले आजम अमीर अल मोमिनी शौहर, रसालत फातिमा की है, इमामत फातिमा की है। रसालत फातिमा की है, रसालत फातिमा की है, इमामत फातिमा की है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सरवर माशाअल्लाह। ये जनाब लियाकत साहब जो बीबी दया के हवाले से उनके अय्याम फातिमा का सिलसिला चालू है। आइए चार मिसरे बीबी दया के हवाले से हाजिर कर रहा हूँ। आपके जहन में वो वाक़या तो मौजूद है कि जब बीबी दया ने इमाम हसन हुसैन को कहा था कि दर्जी कपड़ा लेकर आएगा, और उसी पर चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग, सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग। एक जरा सा राज जब दुनिया में पहचाना नहीं। तीसरा बात के सैयदा की मंजिलों को कैसे पहचानेंगे लोग। एक जरा सा राज जब दुनिया में पहचाना नहीं, तो कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। और चार मिसरे इमाम अली के हवाले से के हाथ जोड़े हुए जिब्रील खड़े रहते हैं, हाथ जोड़े हुए जिब्रील खड़े रहते हैं, इससे साबित है यहाँ लोग खड़े रहते हैं। हाथ जोड़े हुए जिब्रील खड़े रहते हैं, इससे साबित है यहाँ लोग खड़े रहते हैं। तो दुनिया वालों ये है दरबार शहंशाह नजफ, ताज वाले यहाँ कदमों में पड़े रहते हैं। दुनिया वालों ये है दरबार शहंशाह नजफ, ताज वाले यहाँ कदमों में पड़े रहते हैं। आइए इन्हीं मिसरों के साथ मैं हमारे जनाब निहाल अहमद साहब से ये दुआएं और वालिदा मौलाना रज़ाना की पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु के मोमिन की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलाम। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद कि कोई भी जिक्र मुकम्मल नहीं खुदा के बगैर, कोई भी जिक्र मुकम्मल नहीं खुदा के बगैर। ये कायनात अधूरी है करबला के बगैर, ये कायनात अधूरी है करबला के बगैर। हो बनाया रब ने जन्नत का, बनाया रब ने जन्नत का, बुझी बुझी थी फिर दोस्त बुझी बुझी थी फिर दोस्त फातिमा के बगैर। और फलक भी शर्म से उस वक्त पानी पानी था, फलक भी शर्म से उस वक्त पानी पानी था। दरे यजीद पे ज़ैनब थी जब रिदा के बगैर, दरे यजीद पे ज़ैनब थी जब रिदा के बगैर। और इंसान से हाजिर कर रहा शेख खाली क्या क्या देखा
आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहूँ सी पे कम बरसना देखा, जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुहरा से, जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुहरा से, कहो किस मुँह से के परदेश में क्या क्या देखा, मेरे मैंने देखा गए का गला खून में तर, मैंने देखा गए का गला खून में तर, मैंने ज़ख्म अली अकबर का कलेजा देखा, मुझे एक बैठे शहदी पोस्ट पे लाए उसमें एक बैठे शहदी पोस्ट पे लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा, मुझे और गिर पड़े से नबी था के हाथों से गिर गए, गिर पड़े से नबी था के हाथों से गिर गए, अली अकबर को रेत पे तड़पता देखा,
مجھے خلقوں میں ہو بردا خلق نے اس بیوی کے سر کو دیکھا بردا خلق نے اس بیوی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جلاگا دیکھا مجھے خلقوں میں لاکھوں میں کیا کیا دیکھا پر کہیں سیتے پرم برسلا دیکھا محمد صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ دوسروں کا نام پیش کر رہے تھے. آئیے چار مصرے حاصل کرتا ہوں آپ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ بہت مقصدہ ہوا ہے. چار مصرے کا پہلے بات دیکھیے کہ شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا, شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا, حالات کبھی ان کے سدھرتے نہیں دیکھا. تیسرا ہمارے بات دیکھیے کہ شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا, حالات کبھی ان کے سدھرتے نہیں دیکھا. تو ہنس ہنس کے علی والوں کو سولی پہ ہمیشہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اترتے نہیں دیکھا. ہنس ہنس کے علی والوں کو سولی پہ ہمیشہ, ہنس ہنس کے علی والوں کو سولی پہ ہمیشہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اترتے نہیں دیکھا. چڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اترتے نہیں دیکھا. یہ ایک مصرے کو ڈھیر سارے آواز ہے جناب ساتھی ہمارے صاحب کو کہوائے اور واقعہ قرآن نظرانے کی طرف پیش کریں. در محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد در محمد والے محمد قلم ترین سلوار. آپ نے اپنی گواہی دی کہ ہاں ہم علی کے چاہنے والے ہیں. اب میں پورا قصیدہ امام علی کا پڑھ رہا ہوں, اس میں گواہی زیادہ چاہیے ہوگی کیونکہ سنا ہے نا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بطور خاص دیتے کہ بے قصوں کے مددگار مولا علی, جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. ارے تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں, غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں. غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں. بطور خاص کی جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں, ارے جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اے مسلمانوں اصحاب سے پوچھئے, اے مسلمانوں اصحاب سے پوچھئے, کیا یہ نبی نے
بےکسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ اچھا یہ شعر بطور خاص ہے، یہیں پہ آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے بطور خاص، کہ پورے صراط میں جو پوچھا ہی جائے گا آخری سوال رکھ کے وہ یہی ہے کہ بھیڑ سے حاجیوں کی آئی صدا، بطور خاص دیکھیں کہ بھیڑ سے حاجیوں کی یہ آئی صدا، خون کے میدان میں یہ نبی نے کہا یا علی ہے وسیع خوب پہچان لو، یا علی ہے وسیع خوب پہچان لو، ارے جو علی کا نہیں وہ ہمارا، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ وہ تو کمزے ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، ارے وہ تو کمزے ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، ارے جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چھوئے وہ تارا نہیں، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ ارے کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر، یہ آپ سب کے لیے ہے جو بھی یہاں غلام علی بیٹھا ہے ان کے لیے ان کے نظر کرتا ہوں بطور خاص کہ کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر، میں غلام علی ہوں غلام علی، اے بلب تو کیا تیری محفل میں بھی، اے بلب تو کیا تیری محفل میں بھی، میری قسمت سا کوئی ستارہ نہیں، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ ارے جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سنتے رہے، ارے جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانے کفر چپ چاپ سنتے رہے، ارے سب کے پہلوؤں میں تلوار موجود تھی، ارے سب کے پہلوؤں میں تلوار موجود تھی، امریکہ سے کسی نے اتارا، بےکسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ محمد صاحب سلامت رکھے، بہترین انداز سے پیش کر رہے تھے جناب صاحب مولا علی کے حوالے سے حاضر کر رہے تھے۔ ایک مسجد کا شعر ہے اور سلام کر رہے محمد مولانا کے حوالے سے کہ اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ کون ہے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے، اترا ہے جس کے در پہ ستارہ وہ
बख्शा वो कौन है, तो तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है, जो जंगों से कभी भी ना भागा वो कौन है। तो ये सारे कमालात खुदा के वली में है, कुल अंबिया की जात अकेले अली में है। ये सारे कमालात खुदा के वली में है, ये सारे कमालात खुदा के वली में है, कुल सलवात मोहम्मद भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाह मैं तमाम उम्मीद से गुजारिश करता हूँ कि वो इमाम बारगाह में तशरीफ ले आए, मौलाना मासूद भी तशरीफ ला चुके हैं। आइए एक मत्ता चंद शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद कि दोस्तों आला ज़मीनी का यही मियार है। आप देखिए कि दोस्तों आला ज़मीनी का यही मियार है, दोस्तों आला ज़मीनी का यही मियार है, जिसमें जितनी करबला है उतना गैरतदार है। दोस्तों आला ज़मीनी का यही मियार है। और तीसरे हमारे पास कि दोस्तों आला ज़मीनी का यही मियार है, जिसमें जितनी करबला है उतना गैरतदार है। तो करबला में जंग का अंदाज बदला जाएगा, गर्दनें पूछेंगी तलवारों में कितनी धार है। करबला में जंग का अंदाज बदला जाएगा, गर्दनें पूछेंगी तलवारों में कितनी धार है। तो उसको उतनी ही मिलेगी कत्ले सरवत की सजा, जिसके दिल में जितना मुझे हैदरे करार है। उसको उतनी ही मिलेगी कत्ले सरवत की सजा, जिसके दिल में जितना मुझे हैदरे करार है। आइए इन्हीं मिसरों के साथ में जनाब मिशन सुल्तान पुलिस साहब से गिरवाए और वायदा मौलाना लगाने की पेश करें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु याद उसकी कोई भी दुआ न हो, बोलो उसकी कोई भी दुआ न हो। होठों पे जिस बशर के हदीसे के साथ, बशर के हदीसे के साथ न हो। मैं जान दे दो अपनी जो ऐसा हुआ न हो। मौला अली का नाम ले और मोजिज़ा न हो। मौला अली का नाम ले और मोजिज़ा न हो। ये से बताओ एक हाथ। लब पर यही था मुरसले आजम के बार बार, लब पर यही था मुरसले आजम के बार बार। वो घर नहीं अजीज जहाँ फातिमा, वो घर नहीं अजीज जहाँ फातिमा न हो। वो घर नहीं अजीज जहाँ फातिमा न हो। ये भी शेर पकड़ेगा। उससे बड़ा गरीबो नहीं कायनात में, उससे बड़ा गरीब नहीं कायनात में। सब कुछ हो जिसके पास शऊरे आज़ाद, सब कुछ हो जिसके पास शऊरे आज़ाद, सब कुछ हो जिसके पास शऊरे आज़ाद हो। ये भी शेर बताओ साहब। ऐसे जफा शेयार पे
کرتا ہوں لعنتیں، ایسے جفا شیار پہ کرتا ہوں لعنتیں، جس نے بھی حق فاطمہ زہرا دیا نہ ہو، جس نے بھی حق فاطمہ زہرا دیا نہ ہو۔ یہ بھی شعر بطور خاص سماعت حضرات۔ اس کو علم اٹھانے کا کوئی بھی حق نہیں، اس کو علم اٹھانے کا کوئی بھی حق نہیں، قول و عمل میں جس کے ذرا بھی وفا نہ ہو، قول و عمل میں جس کے ذرا بھی وفا نہ ہو۔ یہ بھی شعر بطور خاص۔ رکھتا نہیں ہوں ایسے گھروں سے میں واسطہ، رکھتا نہیں ہوں ایسے گھروں سے میں واسطہ، رکھتا نہیں ہوں ایسے گھروں سے میں واسطہ، عباس کا جہاں پہ بھی پرچم لگا ہو، عباس کا جہاں پہ بھی پرچم لگا نہ ہو، عباس کا جہاں پہ بھی پرچم لگا نہ ہو۔ یہ شعر بطور خاص سماعت حضرات۔ کعبے میں بھی پڑھے جو نماز فضول ہے، کعبے میں بھی پڑھے جو نماز فضول ہے، کعبے میں بھی پڑھے جو نماز فضول ہے، ارے راضی اگر حسین کی ماں فاطمہ، راضی اگر حسین کی ماں فاطمہ، راضی اگر حسین کی ماں فاطمہ نہ ہو، کعبے میں بھی پڑھے جو نماز فضول ہے، راضی اگر حسین کی ماں فاطمہ نہ ہو۔ نئے سلوات۔ ماں کے حوالے سے سماعت نظر۔ موت کیا ہوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، ارے بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جان کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، جان کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، ہاتھیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، کتنی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں،
فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، فکر کے شمشان میں آخر چتاؤں کی طرح جیسے سوکھی لکڑیاں اس طرح جل جاتی ہے ماں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا پیش کر رہے تھے، بہت ہی اچھے انداز میں کچھ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر مولانا موصول آپ کے حوالے ہوں گے۔ آخری حجت کے حوالے سے شعر بطور خاص دیکھیں، اور اچھا لگے تو آپ سے دعائیں چاہتا ہوں کہ وہ عسکری کا پسر ہے جو آنے والا ہے، سبھی کو جام ملا کا پلانے والا ہے۔ بطور خاص قبلہ دیکھیں کہ چلو چلیں گے ابھی عسکری کے در پہ سبھی، خدا وہاں ابھی قسمت بنانے والا ہے کہ ابھی زلیخا بھی اپنے ارادے بدلے گی، ابھی زلیخا بھی اپنے ارادے بدلے گی، ابھی وہ روح سے جو پردہ اٹھانے والا ہے کہ میں کر رہا ہوں یہاں ابن مرتضیٰ کی صلاح، کیا فاطمہ کو کوئی یہ بتانے والا ہے کہ سنا ہے موسیٰ احمد نے رب کا لہجہ مگر، ہم کتنے خوش نصیب ہیں یہ دیکھیں کہ سنا ہے موسیٰ احمد نے رب کا لہجہ مگر، ہمیں تو یوسف زہرا سنانے والا ہے کہ وہ جس نے چین کے باغ فدق کو کھایا تھا، وہ جس نے چین کے باغ فدق کو کھایا تھا، وہ تیغ مہدی سے اب ضرب کھانے والا ہے کہ ہے جتنا سونا ابھی سو نبی کے بازو میں، ہے جتنا سونا ابھی سو نبی کے بازو میں، وہ آ کے دیکھنا مرغا بنانے والا ہے، وہ آ کے دیکھنا مرغا بنانے والا ہے کہ نماز روزے نہیں، خمس اور زکوٰۃ نہیں، نماز روزے نہیں، خمس اور زکوٰۃ نہیں، ہمارے کیا یہ سبھی تو دکھانے والا ہے، ہمارے کیا یہ سبھی تو دکھانے والا ہے۔ آئیے میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں ہمارے جناب مولانا سید عامر قاضی صاحب سے جو منبر پہ تشریف لائے، اور محمد بعد محمد بلند ترین صلوات۔ سلام اللہ علیہ کے دشمنوں قاتلوں پر، مسمار کرنے والوں پر، بیوی کا حق کھانے والوں پر، باپ کے دشمنوں پر، اولاد کا حق کھانے والوں پر، پارا چناب کے مومن پہ ظلم کرنے والوں پر، حیدری اللہ جنت البقیع کی جنت سے خوبصورت تعمیر ہونے کے لیے آواز سے بلند صلوات۔ جناب کے مومنین کی سلامتی کے لیے آواز سے بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بار دیگر ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بلدین فاطمہ بنت حیدر کرار کی روح کو وصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ علی محب الغرباء الفقراء المساکین رحمۃ للعالمین الرسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین صاحب قاب و قوسین امامہ مشارق و مغارب وبدن الصابر ولسان الذاکر وقلب الشاکر والامہات الطاہر الذین لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وجلالتہم وولایتہم وشجاعتہم وقشم اجمعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب ونتر شافع یوم محشر ومالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وخطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات محمد بزرگان عزیز برادران ملت ظاہر مجلس اعزا جو کہ برائے سال ثواب اور بنام مجلس چہلم منعقد کی گئی ہے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کی اتنی مشہور و معروف آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ایک لفظ کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور وہ لفظ ایسا ہے کہ جس لفظ سے ہر ایک انسان کو سامنا کرنا ہے جزی نفس نے بھی عدم کے سناٹے کو توڑ کر وجود کی بستی میں قدم رکھا اسے موت کا مزہ بہرحال چکھنا چنانچہ قرآن مجید کا اور قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیت جس کو آپ نے بارہا مجلسوں میں سنا ہے لیکن آپ کی دیار محبت میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا تو میں نے سوچا اور یہ طریقہ بھی ہے کہ جس نسبت سے مجلس رکھی گئی ہے اسی نسبت سے مجلس کو پڑھا جائے ورنہ حالات میں مجلس ہو رہی ہے موت کے حوالے سے اور پوری مجلس میں لفظ موت پہ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے اچھا ایک عجیب و غریب لطف بھی ہے اگر آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے کہ جس امر یقینی کو موت کہا جاتا ہے اور جس امر یقینی سے ہر ایک کو سامنا کرنا ہے
क्या आप ये नहीं कहती कि उसके बारे में जान लिया जाए कि ये मौत है क्या? हमारे समाज और माशरे में कोई भी आदमी मौत का एतकाद तो है, यकीन तो है कि मौत आएगी। इस दुनिया में कोई खुदा को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन वो भी ये मानता है कि मौत आएगी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी आपको मिलेगा नहीं ढूंढने से कि जो आदमी ये कह दे कि हमें मौत नहीं आएगी। मौत सबको आनी है। जो जा चुके हैं वो जा चुके हैं, जो आने वाले हैं वो जाएंगे, हर एक को जाना है। तो जाहिर है कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम मौत के बारे में जानें कि ये मौत है क्या। आज के समाज और माशरे में मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये अगर पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा इतना दूर का सफर कामयाब रहा। आप किसी भी जगह पर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 5 मिनट आप मौत के बारे में बोलना शुरू करिए। ऐसा लगता है कि जैसे मौत अब आने लगी है। यानी हर एक आदमी मानता तो है मौत को, मगर मौत के जिक्र को सुनना पसंद नहीं करता। लफ्ज मौत को पसंद कोई नहीं करता। कोई भी आदमी जिक्र मौत को सुनना चाहता नहीं है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं अपनी बात को शुरू करूं कि आप किसी खुशी के मौके के ऊपर मौत का जिक्र छेड़ दीजिए। अच्छों अच्छों की पेशानियों पे बल पड़ जाते हैं, अच्छों अच्छों की तेवरियों पे दम आ जाते हैं, और हर एक आदमी कहता है मौलाना साहब आपको यही जगह मिली थी मौत का जिक्र करने के लिए। अरे कभी और कर लेते, खुशी का मौका है, यहाँ पे मौत का जिक्र ना करिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी जिक्र मौत सुनना पसंद नहीं करता। तवज्जे, कोई भी आदमी जिक्र मौत सुनना पसंद नहीं करता, जबकि पैगंबर फरमाते हैं कि मोमिन वही है जो अपने लिए 2 चीजों को खैर समझता हो, एक है मौत और एक है किल्लत माल। बात पहुंच रही है आप तक? एक है मौत, एक है किल्लत माल। मोमिन वही है कि जो अपने लिए मौत को नेमत समझे और किल्लत माल को, माल की कमी को जो है वो अपने लिए नेमत समझे। मोमिन वही है। हालांकि मोमिन इसको खैर नहीं समझता। जिसको मौत आ गई, हर एक आदमी कहता है जिसके जाने के दिन कहां थे। अगर किसी के पास जो है वो पैसों की कमी है तो हर एक आदमी कहता है कि अल्लाह इनसे नाखुश है। पैगंबर की हदीस के बिल्कुल बरक्स हमारा समाज और माशरा काम कर रहा। हम ये समझते जिसके पास जितना ज्यादा पैसा हो अल्लाह उससे इतना ज्यादा खुश है। अगर पैसे की फरावानी से और दौलत की कसरत से अल्लाह की रजायत मिल जाती तो फिर फिरौन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता। तो मैं कहने का मकसद यह है कि कोई भी आदमी जिक्र मौत सुनना नहीं चाहता। अब जब कोई आदमी जिक्र मौत नहीं सुनना चाहता तो आज मैं पहली बार आपके दरमियान आया हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहली ही मुलाकात में आज पूरी की पूरी गुफ्तगू आपसे मौत ही के ऊपर हो जाए। देखा जाए कि आप कितनी देर तक मौत सुन सकते हैं, कितनी देर तक आप जिक्र मौत का लुत्फ ले सकते हैं। और मेरे अजीजों, मैं बच्चों को मुत्तसिल करने के लिए एक दास्तान भी सुना दूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाकायदा जो है वो कहानियां और किस्से जो है वो उलमा ने लिखे हैं बाकायदा, कि कोई भी आदमी जिक्र मौत सुनना नहीं चाहता। चुनांचे मशहूर और मारूफ वाकया है कि एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि मेरे मुंह के सारे दांत टूट गए। अब बादशाह का ख्वाब है, मामूली आदमी का ख्वाब थोड़ी है। अब बादशाह ने ख्वाब देखा, फौरन जो है वो सबको बुला लिया। जितने पढ़े लिखे अफराद थे, जितने जो है वो जानकार थे, कि आप आ जाइए और मेरे ख्वाब की ताबीर बतलाइए। मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे मुंह के सारे दांत टूट गए। अक्सर बेशतर ये ख्वाब हमारी कौम के नौजवान भी देखते हैं, और अक्सर बेशतर चूंकि मैं इमाम जुमा हूं, मेरे पास टेलीफोन भी आता है, मौलाना साहब हमने सुबह में ये ख्वाब देखा, हमने जोहर में ये ख्वाब देखा, हमने मगरिब में ये ख्वाब देखा। हमने उन नौजवानों को टेलीफोन पे भी कहा है, आज आपको भी बतला रहे हैं कि आप कितना ही ख्वाब देख लीजिए, आपका ख्वाब न नबी के बराबर ख्वाब है, न इमाम के बराबर ख्वाब है।
آج بات پہنچ جائے میری یاد پر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کا خواب نہ نبی کے برابر خواب ہے نہ ایمان کے برابر خواب ہے. آپ جتنا خواب دیکھنا ہو دیکھ لیجیے, مگر پڑھے لکھے افراد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے شاید ہی جملے کی قدر کریں گے. ہاں علماء نے فرمایا ہے کہ ہر ایک سے اپنے خواب کو اس وقت تک بیان نہ کرنا جب تک اس خواب کا اہل نہ مل جائے. کاش بات پہنچ جائے. یعنی ہر ایک کو اپنا خواب نہ بتلاؤ جب تک خواب کا اہل نہ مل جائے. اپنے خواب کو کسی کو نہ بتلانا. ہاں علماء نے ایک جملہ بھی لکھا, جو لوگ زیادہ خواب دیکھتے ہیں, صبح میں کچھ خواب, دوپہر میں کچھ خواب, شام میں کچھ خواب, اٹھا لیا فون, لگا دیا مولانا کو فون, ان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن کو زیادہ خواب آتا ہے یہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی زیادہ خواب آتے ہیں. لہذا مولانا کو پریشان نہ کریے, اپنے پیٹ کا علاج کروائیے تاکہ خواب زیادہ نہ لکھے. صلوات پڑھیں محمد خیر. خواب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. جو لفظ ہے میرا وہ لفظ ضائع نہ کریے گا انشاءاللہ. اگر میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں تو میری تقریر کو اپنے گھر تک لے جائیے گا اور یاد رہے گی آپ کو تقریر. میں لفظ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی آدمی آج کے زمانے میں ذکر موت سننا نہیں چاہتا. بادشاہ نے خواب دیکھا, میرے منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے. سب لوگوں کو بلا لیا, پوچھا گیا کہ بھئی تم نے کون بتائے گا یہ تعبیر کہ میرے خواب میرے منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے. ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا کہ جس سرکار ہم بتائیے. کہا بتلائیے. کہا بادشاہ سلامت, یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے. مجھے احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ خشک موضوع لے کے بیٹھا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں چونکہ مجھے بلایا اس موضوع کے لیے گیا ہے, لہٰذا اس موضوع پہ پڑھوں گا. کبھی کسی اور موضوع پہ بلائیے گا جب پڑھیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. لہٰذا اس نے جیسے ہی تعبیر بتلائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے. ابھی میں پڑھ کے گیا ہوں, بادشاہ کی پیشانیوں پہ بل پڑ گئے, تیوریوں پہ دم آ گئے. کہنے لگا کیسی نالائکی کی بات کرتے ہو, تم نے میرے رشتہ داروں کے مرنے کی خبر میرے سامنے دے رہے ہو. فوراً دروغہ کو حکم دیا, دروغہ زندان کو, اسے پکڑو قید خانے میں ڈالو. اتنے کوڑے صبح میں مارنا, اتنے کوڑے دوپہر میں مارنا, اتنے کوڑے شام میں مارنا. وہ پہنچ گئے جو ہے وہ زندان میں. کہا اب تم میں سے کون بتائے گا میرے خواب کی تعبیر کے میرے منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے. ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اجازت ہے ہم بتائیں. کہا بتلائیے. کہا یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے, یہ تو بڑا مبارک خواب ہے, یہ تو بڑا خوشخبری دینے والا مقام ہے. یہ تو خواب اس بات کی نمید ہے کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ جیئیں گے. اب مجلس میں نہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ جیئیں گے. بادشاہ نے کہا یہ ہوئی بات, انہیں دو انعام, انہیں دو دولت, انہیں دو اقتدار. میرا اس مختصر سے مجمع سے بس اتنا سے سوال ہے, آپ بتلائیے کہنا والا خواب کی تعبیر صحیح بتلا رہا تھا یا دوسرا والا بتلا رہا تھا؟ آپ کہیں گے دونوں بتلا رہے تھے صحیح, مگر ہوا کیا؟ پہلا والا زندان پہنچ گیا, بعد والے کو انعام مل گیا. پہلے والے نے ذکر موت کر دیا, دوسرے والے نے ذکر حیات کر دیا. انسان کی مجبوری ہے, ذکر موت نہیں سنتا, ذکر حیات سنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد تو بادشاہ نے بس میں نے صرف اور صرف اب آپ کو اس لیے یہاں تک اس مقام تک لایا ہوں کہ آپ میرا موضوع سن سکے اور اس لفظ کو گھر تک لے جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. لہذا کوئی بھی آدمی آج کے زمانے میں ذکر موت سننا نہیں چاہتا. جب سننا نہیں چاہتا تو میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری تھوڑی سی مدد کر دیجیے گا, انشاءاللہ تقریر آپ کو یاد رہ جائے گی. میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوانوں بیدار ہو کے سننا, اگر اس رخ سے موت سنی ہو تو دنیا نہ دینا, اگر الگ انداز سے تقریر ہو جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. آیات قرآنی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
नौजवानों बेदार होकर सुनिएगा, ये आयत है, मुझसे बेहतर खुतबा से आप सुन चुके हैं ये आयत करीमा। आज तालिब इल्म की मेहनत भी सुन लीजिए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कितनी आसान है ये आयत, सबको याद होगी तकरीबन, और आयत भी याद होगी और तर्जुमा तो जरूर याद होगा। चूंकि मौत के मौके पे दो आयतें सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है हमारे यहाँ, एक है कलमा इस्तरजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या कोई मजलिस चेहलम का पोस्टर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक जो है वो सदर पर ये आयत ना लिख दी जाए कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कितनी आसान है ये आयत, सबको पता है। इस मजमे में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको पता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का तर्जुमा क्या है। अगर मैं ना भी तर्जुमा करूं तो कोई ये नहीं कह सकता कि मौलाना ने आयत क्या पढ़ी थी, तर्जुमा क्या किया था, इसलिए कि मशहूर और मारूफ आयत है। लिहाजा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। कितनी आसान है ये बात, सबको पता है। मैं मिसाल दूं इस आयत की अजमत के लिए, मैं बिलफर्ज महाल, हालांकि मैं पहली बार आया हूं यहाँ पे, लिहाजा ये मिसाल हकीकत पर मबनी नहीं हो सकती। इत्तेबाक से मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ने के लिए आया, मौत के हवाले से इत्तेबाक से मजलिस सबको अच्छी लगी, किसी ने हमारे ऊपर रहम किया, दोबारा फिर बुला लिया इस जमीन पे। हम दोबारा आए मजलिस पढ़ने के लिए, जो पहली मर्तबा पढ़ के गए थे फिर दूसरी मर्तबा आए तो वही पढ़ी जो पहली बार पढ़ी थी, फिर दोबारा पढ़ के चले गए, फिर किसी ने रहम किया। मैं बात नहीं खराब कर रहा हूं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। मैं दूसरी बार गया, फिर किसी ने रहम किया, फिर तीसरी बार बुला लिया। मैं तीसरी बार आके फिर वही मजलिस पढ़ने लगा जो पहली दूसरी बार पढ़ के गया था। अब जब पढ़ के जाने लगा फौरन एक साहब ने कलाई को पकड़ लिया, मौलाना साहब आपको इतनी दूर से बुलाते इसलिए कि आप एक मजलिस को 3-3 बार सुना। इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी एक मजलिस को कई बार नहीं सुन सकता। तवज्जे तवज्जे तवज्जे, कोई भी आदमी एक बात को बार बार नहीं सुन सकता। बस यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कितनी आसान है यह आयत, और अल्लाह इस आयत को 3 बार कुरान मजीद में नाजिल कर रहा है। सूरह अंबिया में कह रहा है, सूरह अनकबूत में कह रहा है, सूरह आले इमरान में कह रहा है। अरे ये कितनी आसान है ये बात, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना। ये बार बार वही बात क्यों समझाई जा रही है, ये बार बार आयत का आना और बार बार मजमे में से किसी का ना बोलना कि ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो जानते हैं। इसका मतलब ये अल्लाह तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा है। अगर तुम समझ गए होते तो हम दोबारा इस आयत में दाखिल न करते। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी समात को सलामत रखे। मैं जुमला कह रहा हूं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नौजवानों इस रुख से मजलिस सुनना, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। आसान कर रहा हूं, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये लफ्ज़े चखना बता रहा है कि मौत का कोई ना कोई जायका है। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाए। मेरे मुझे एहसास न होने दीजिएगा कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। ये लफ्ज़ चखना बता रहा है, ये लफ्ज़ जायका बता रहा है, ये लफ्ज़ टेस्ट बता रहा है कि मौत का कोई ना कोई मजा है, मौत का कोई ना कोई जायका है। तवज्जो, तो जब मौत का कोई ना कोई जायका है, नौजवानों ऐसे ही सुनना, मौत का कोई ना कोई जायका है, तो आप मुझे बतलाइए कि अल्लाह ये कह रहा है हर एक नफ्स को मौत का मजा चख रहा है, इसका मतलब ये मौत का कोई ना कोई जायका है। कौन बताएगा ये मौत का जायका क्या है? इसलिए कि जो इसे चख लेता है वो वापस नहीं आता। बताने के लिए कभी हुआ है ऐसा कि कोई साहब 60 साल के बाद मौत का मजा चखा हो फिर वापस आ गए हो और आके बतलाए नौजवानों मौत का मजा मीठा है, कड़वा है, फीका है? कभी हुआ है? हाँ, तारीखों में ऐसे वाकयात मौजूद है, वो इंशाल्लाह किसी दूसरे मौके पे अर्ज करेंगे कि जिन्होंने मौत का मजा चखा भी है और बतलाया भी है।
आज बात पहुंच जाए मेरी आप तक। लेकिन हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके मौत का मजा हमारे दादा ने चखा था, वो हमें बता गए, हमारे चचा ने चखा था, वो बता के गए। इसका मतलब यह जो इसे चख लेता है वो वापस नहीं आता। तो पता कैसे लगे कि मौत का जायका क्या है, मौत का मजा क्या है, मौत का टेस्ट क्या है। चलिए इकट्ठे होकर दर आले मोहम्मद पे चलते हैं। आप मुझे बड़ी हैरती निगाहों से देख रहे हैं कि आखिर मौलाना पढ़ना क्या चाह रहे हैं। अगर मजलिस आपको याद न रह जाए तो खिताबत करने का फायदा क्या है। हम दर आले मोहम्मद पे पहुंचे, हमने कहा ए दर आले मोहम्मद वाले हमें बताओ कि मौत का जायका क्या है, मौत का मजा क्या है। दर आले मोहम्मद वालों ने आवाज दी, अगर तुमने हयात का मजा समझ लिया होता तो तुम्हें मौत का जायका समझ में आ गया होता। काश बात पहुंच जाए मेरी आप तक। सलावत पढ़े मोहम्मद तवज्जे मेरी तकरीर से जुड़ जाइएगा, मैं समझूंगा कि मेरा आना सुधारक हो गया। अगर तुमने हयात के जायके को समझ लिया होता तो तुम्हें मौत का जायका समझ में आ गया होता। हमें कैसे समझ में आए हयात का जायका क्या है और मौत का जायका क्या है। मैंने मुकद्दमा आपके सामने पेश किया है कि मौत का जायका क्या है। ए परवरदिगार तू ही बता दे मौत का मजा क्या है, मौत का जायका क्या है। आवाज परवरदिगार आती है, ए मेरे इंसान सुन। नौजवानों सुनना, आवाज परवरदिगार आती है, मेरे इंसान सुन। जब से तूने इस दुनिया में कदम रखा उस दिन से लेकर उस वक्त तक जब तक तुझे लिबास से कफन में लपेट कर मिट्टी के हवाले नहीं कर दिया गया, उस दिन से लेके उस दिन तक, महक से लेके लहक तक, इब्तिदा से लेके अंजाम तक मैंने तेरी जिंदगी को बड़ी बारीकी से पढ़ा है। तो मेरी समझ में आ गया कि ये हजरत इंसान पूरी जिंदगी भर बस एक ही चीज के पीछे भागा, उसका नाम है मजा, उसका नाम है जायका, उसका नाम है टेस्ट। मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे मजलिस की उजरत चाहिए। तवज्जो चाह रहा हूं, लफ्जों को संभाल के रखिएगा क्योंकि मुझे नतीजा लेना है। आवाज़ें परवरदिगार आती है, ए मेरे इंसान सुन, मैंने तेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाला है। तू बस एक ही चीज के पीछे भाग रहा था दुनिया में, उसका नाम है मजा, उसका नाम है जायका। अभी आप समझे नहीं है वरना मुझे पढ़ना न पड़ता। मिसाल दूं ताकि बात समझ में आ जाए। पुराना जमाना, पुराने लोग गारों के मकान में बैठकर गारे के मकान का मजा ले रहे थे। सारा मजा इसी गारे के मकान में था। बराबर में किसी ने पत्थरों का मकान बना लिया। अब जो मजा इसमें है वो इसमें नहीं है। अभी पत्थरों के मकान का मजा ले रहे थे, बराबर में किसी ने आरसीसी लैंटर डाल लिया। अब जो मजा इसमें है वो इसमें नहीं है। काश बात पहुंच जाए मेरी आप तक। अगर बुलाया है लफ्ज़ मौत के हवाले से तो सुनिएगा, आगे बढ़ जाइए। पुराना जमाना, पुराने लोग, गर्मी लगती थी, अपनी गर्मी को दूर कर रहे थे हाथ के पंखे से, हाथ के पंखे को झल रहे थे। सारा मजा इसी हाथ के पंखे में था। किसी ने बराबर में लाके टेबल फैन लगा दिया। अब जो मजा इसमें है वो इसमें नहीं है। अभी टेबल फैन का मजा ले रहे थे, बराबर में किसी ने छत का पंखा लगा दिया। अब जो मजा इसमें है वो इसमें नहीं है। अभी छत के पंखे का मजा ले रहे थे, बराबर में किसी ने कूलर लगा दिया। अब जो मजा इसमें है वो इसमें नहीं है। अभी कूलर का मजा ले रहे थे, बराबर में किसी ने एसी लगा दिया। अब जो मजा इसमें है वो इसमें नहीं है। मेरे अजीजों, कलेजा मुंह को आ जाएगा अगर इतनी मुश्किल बात इतने मुश्किल वक्त में आप तक पहुंचाओ। आप और आगे बढ़िए। अल्लाह ने ये लिबास किस लिए दिया है? ताकि इंसान अपने जिस्म को छुपा सके। आप किसी दुकानदार के पास पहुंचे, आपने कहा मुझे कपड़ा दिखलाइए, उसने 5 थान आपके सामने डाल दिए, ये पकड़िए, ये 500 रुपए मीटर, ये 1000 रुपए मीटर, ये 1500 रुपए मीटर। हमने कहा ये कीमतें क्यों बदल रही है? लिबास का काम तो सिर्फ इतना सा है कि वो अपने जिस्म को छुपाएगा। दुकानदार बोलने लगा जो मजा इसमें है वो इसमें नहीं है, जो मजा इसमें है वो इसमें नहीं है। आज बात पहुंच जाती मेरी आप तक। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, जो मजा इसमें है वो इसमें नहीं है। मजलिस आपको याद रह जाएगी। अरे इंसान का जायका तो इस कदर दुनिया में बढ़ा कि ये जायका दुनिया से उठकर मजलिसों में आने लगा। ऐसी मजलिस पढ़ी के मजा आ गया, ऐसा लोहा बढ़ा के मजा आ गया। बोला जाता है
रहा हूं, समझे जा रहा हूं। यानी इसका मतलब यह है, ये पूरा हजरत इंसान एक ही चीज के पीछे भाग रहा है जिंदगी में, उसका नाम है मजा, उसका नाम है जायका। और मेरी मजबूरी समझिएगा, बहुत सारे जायके और मजे तो ऐसे हैं कि जो मिंबर मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी इस मुख्तसर की बात पर मैं मुतमईन हुआ। तवज्जो चाह रहा हूं, बहुत सारे जायके हैं। यानी ये इंसान, हजरत इंसान पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे भाग रहा है? ये जो तुम अपना वतन छोड़कर यहाँ पे आए हो, हिजरत करके मुंबई में क्यों आए हो? मजा लेने के लिए। ये किस लिए जॉब कर रहे हो? ताकि जिंदगी का मजा मिल जाए। ये जो सर्विस कर रहे हो, किस लिए के मजा मिल जाए? ये जो तुम मेहनतें मशक्कतें सर्विस कर रहे हो, किस लिए के मजा मिल जाए? अमीर आदमी है किसी और चीज का मजा लेगा, गरीब आदमी है दान का मजा लेगा। यानी जैसे जैसे इंसान कोशिश करेगा वैसे वैसे मजा बदलता जाएगा। अल्लाह ने इंसान की जिंदगी को देखा कि ये इंसान पूरी जिंदगी एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, उसका नाम है मजा, उसका नाम है मजा, उसका नाम है मजा। अल्लाह ने हयात इंसानी को पकड़ के कहा, ए मेरे इंसान, जैसे तू अपनी हयात का जायका ढूंढा, वैसे मैंने तेरी मौत का भी जायका रखा है। सलावत है मोहम्मद। मेरे अजीजों, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आखिरी फर्क तक की तवज्जो। ये जो मजलिसों की सदारत कर रहे हैं दानी जानिब और भाई जानिब, अगर इनके हाथ उठ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सुवारत हो गई। इसका मतलब यह है कि अल्लाह इंसान से कह रहा है, जैसे तू अपनी हयात का जायका ढूंढ रहा है, वैसे अल्लाह ने तेरी मौत का भी जायका रखा है। यहां तक आप आ गए। अब एक जुमला सुन लीजिए। परवरदिगार, इतनी बात भी समझ में आ गई कि जिस तरीके से हयात का जायका है, वैसे अल्लाह ने मौत में भी जायका रखा। परवरदिगार, ये मौत का जायका है क्या? फिर वही बात आ रही है। ठीक है, हमने मान लिया कि मौत का जायका है, जैसे हयात का जायका वैसे मौत का भी जायका, मगर मौत का जायका है क्या? कौन बताएगा? आवाज परवरदिगार आती है, मेरे इंसान सुन। नौजवानों, अगर हल्का सा ज़हन को इधर उधर ले गए तो तकरीर समझ में नहीं आएगी। इला आखिर मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे मेहनत की उजरत चाहिए। तवज्जो चाह रहा हूं, जुमला सुन लीजिए। परवरदिगार, ये मौत का मजा है क्या? आवाज परवरदिगार आती है, ए मेरे इंसान सुन। मैंने जब इस पूरी कायनात को बनाया तो मैंने कायनात की जो भी चीज पैदा की, मैंने उस चीज को उस वक्त तक पैदा नहीं किया जब तक उस चीज का मजा न बना दिया हो। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ उठ गए सुभान अल्लाह, जिनके हाथ नहीं उठे कोई गिला शिकवा नहीं है मुझे। मैंने कायनात में जो भी चीज बनाई है, मैंने उसका कोई ना कोई जायका रखा है, कोई ना कोई मजा रखा। मैंने जायका भी बनाया है और रंग भी रखा है। वो चीज अपने रंग से भी पहचानी जाती है और अपने जायके से भी पहचानी जाती है। हमने हैदराबाद में पूरा अशरा पढ़ा है रंग के ऊपर, मगर पूरा अशरा नहीं सुनाना, सिर्फ एक जुमला सुनाना। अल्लाह ने पूरी कायनात या तो रंग में पैदा की है या जायके में पैदा की है। अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, आम अगर कच्चा है तो उसका रंग अलग है। आज बात पहुंच जाए, आम अगर कच्चा है तो उसका रंग अलग है, आम अगर पक गया तो उसका रंग बदल गया। क्या समझे? जैसे जैसे अंदर इनकलाब आता चला जाएगा, बाहर का रंग बदलता चला जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। हमने कोई भी चीज नौजवानों मेरी तरफ मुतवज्जो
लेते रहिएगा। मैं बार बार नहीं आता ये सब पढ़ने के लिए, एक ही बार आता हूं, दिल लगा के सुन लीजिए। लिहाजा याद रखिएगा, आवाज़ परवरदिगार आती है, मेरे इंसान सुन, मैंने इस पूरी कायनात को जो भी बनाया है, मैंने उसका कोई ना कोई जायका बनाया है। जायके से कोई भी चीज खाली नहीं है जो मैंने बनाई है दुनिया में। और याद रखना नौजवानों, तकरीर याद रहेगी, और याद रखो जिसका जायका हम बना देते हैं वो जायका कभी नहीं बदलता। फिर आप मुझे आमादा कर रहे हैं कि मैं जुमला हवाले करूं। हमने जिस चीज के अंदर जो जायका रख दिया है वो जायका कयामत तक रहेगा, वो जायका कभी ना बदलेगा। मिसाल दूं ताकि आपकी हैरती निगाहें मुझसे हट जाए। अमरूद इसका अपना अलग जायका है। नौजवानों थोड़ी सी मदद करिए। अमरूद इसका अपना अलग जायका, आम इसका अपना अलग जायका है, पपीता है इसका अपना अलग जायका। अमरूद कहीं पे भी खाओ वही जायका मिलेगा, इंडिया में खाओ वही जायका, ईरान में खाओ वही जायका, अमेरिका में खाओ वही जायका। क्या समझे आप इस बात से? मतलब ये सरहदें बदल नहीं है, कीमतें बदल नहीं है, मगर जायका नहीं बदल रहा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, कीमतें बदल रही है, सरहदें बदल रही है, मगर जायका नहीं बदल रहा। आवाज़ परवरदिगार आती है, ए मेरे इंसान, मैंने तेरी पूरी हयात में कोई ना कोई जायका रखा है, मैंने पूरी हयात में कोई ना कोई जायका रखा, मगर मौत बिना जायके के तेरे हवाले कर दी है कि तू अपनी मर्जी से अपनी मौत का जायका खुद बना ले। सलावत पढ़े मोहम्मद नौजवानों याद रखना, तकरीर का अंदाजा तकरीर के वक्त नहीं होता, तकरीर के बाद होता है। घर तक सोचते हुए जाइएगा, कलेजा मुंह को आता है, सीडी नहीं है जो चल रही है, सिक्का राजुल वक्त है, हर दौर में चलेगा ये जो मैं पढ़ रहा हूं। लिहाजा तकरीर को अपने घर तक ले जाइएगा। आवाज़ परवरदिगार आती है, मेरे इंसान सुन, मैंने तेरी हयात में जायका भरा है बस, मगर मौत बिना जायके के तुझे दे दी कि हयात में जायका हम भरेंगे, मौत में जायका तू भरेगा। काश बात पहुंच जाए मेरी आप तक। मौत में जायका तुम बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे। हमने मौत बिना जायके के तेरे हवाले कर दी। हमने तेरी हयात में जायका रखा, तेरी मौत में जायका हमने कुछ नहीं रखा। हमने मौत बिना जायके के तेरे हवाले कर दी। कितनी आसानी से ये जुमला सुन लिया इन लोगों ने। मेरे अजीजों, हमने मौत बिना जायके के तेरे हवाले कर दी। मौत का जायका तुम बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि मौत बिना जायके के हमें मिली है, इस मौत में जायका हमें भरना है। इतनी मेहनत मैंने इसीलिए थोड़ी की थी, अब नतीजे का वक्त आ रहा है, तवज्जो चाह रहा हूं। मतलब समझे, मौत हमने बिना जायके के तेरे हवाले कर दी कि तू अपनी मर्जी से अपनी मौत का जायका बना, मीठी से मीठी बना ले, कड़वी से कड़वी बना ले। हमने तेरे हवाले कर दी, तू अपनी मौत का जायका खुद बना। मौत का जायका हम नहीं बनाएंगे, मौत का जायका तू खुद बनाएगा अपनी मौत का। तो सवाल मेरा फिर यही है कि इस मौत का जायका बनेगा कब? मुझे खामोश होना पड़ेगा, आपको नहीं। ये मौत का जायका बनेगा कब? मौत बिना जायके के अल्लाह ने हमें दे दी, अब ये मौत का जायका बनेगा कब? माजरत के साथ इमाम जुमा हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरी करता हूं, कोई बुलाए न बुलाए। मौत हमने बिना जायके के तेरे हवाले कर दी, अब इस मौत में जायका कब बनाओगे? संडे संडे, जुमा जुमा, रमजान रमजान, अय्यामे अज़ा कब बनाओगे इस मौत का जायका?
یا کبھی آپ کی مسجد کے پیش امام نے اعلان کیا ہو کہ آپ حضرات فلاں دن فلاں وقت تشریف لائیے گا، موت کا مزہ بنایا جائے گا؟ کبھی ہوا ہو تو بتلائیے۔ یا کبھی شب داری ہوئی ہو اس نام سے کہ موت کا ذائقہ بنے گا اس جگہ پہ؟ یا کبھی آپ نے اپنے گھر کے مکھیا ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو بٹھا کے کہا بچوں آؤ سنڈے ہے آج چلو موت کا ذائقہ بناتے ہیں؟ یہ موت کا ذائقہ بنے گا کب؟ اللہ نے ہماری موت کو بنا ذائقے کے ہمارے حوالے کر دیا کہ موت کا ذائقہ تم بناؤ گے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے موت کا ذائقہ بنایا ہو۔ آواز پروردگار آتی ہے، اے میرے انسان تیری مجبوری یہی ہے، تو یہ سوچ رہا تھا کہ موت کا ذائقہ تو بنائے گا، یہ تیری غلطی ہے۔ جیسے جیسے تو اپنی حیات کا ذائقہ بنا رہا تھا، ادھر تیری حیات کا ذائقہ بن رہا تھا، ادھر تیری موت کا ذائقہ بن رہا تھا۔ کاش میری بات پہنچ جائے، میری صلوات ہے محمد وآل محمد۔ یہ جو بول تو نہیں ہو رہے آپ؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ تھوڑا سا باہر کا محلہ بھی میری مجلس سے جڑ جائے، میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی۔ میری طرف متوجہ رہیے، آواز پروردگار آتی ہے، میرے انسان سن، تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو حیات کا ذائقہ بنا رہا تھا، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ ادھر تو اپنی حیات کا ذائقہ بنا رہا تھا، مگر جدھر تیری حیات کا ذائقہ بن رہا تھا ادھر تیری موت کا ذائقہ بھی تیار ہو رہا تھا۔ مثال تو بیٹھے ہوئے علماء کی غیبت کر رہے تھے، مزہ آ رہا تھا۔ کاش بات پہنچ جائے میری آپ کا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بیٹھے ہوئے علماء کی غیبت کر رہے تھے، مزہ آ رہا تھا۔ تم کیا سوچ رہے تھے؟ تمہاری حیات کا ذائقہ تیار ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، تمہاری موت کا ذائقہ تیار ہو رہا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی حیات کا ذائقہ بنانے لگا تھا، مگر ادھر حیات کا ذائقہ نہیں تیار ہو رہا تھا، ادھر تیری موت کا ذائقہ تیار ہو رہا تھا۔ اور مثال دو، موقع پایا بھائی کا حق چھین لیا، مزہ آ گیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی کا حق چھین لیا، بھائی کا حق چھیننے میں مزہ آ گیا۔ ارے سوچ کیا رہے ہو؟ اس میں مزہ آ رہا ہے۔ تم یہ سوچے حیات کا ذائقہ بن رہا ہے، ادھر تمہاری موت کا ذائقہ تیار ہو رہا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرے عزیزوں میرا وقت تمام ہو گیا، اس لیے کہ دوسری مجلس بھی لگی ہوئی ہے۔ مجھے اس چیز کا خیال ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ آئیں گے تب تفصیلی بیان عرض کریں گے، بس جملہ سن لیجیے۔ جیسے جیسے تیری حیات کا ذائقہ بن رہا تھا ادھر تیری موت کا ذائقہ تیار ہو رہا تھا۔ تو کیا سوچ رہا تھا کسی کو بھی گالی دے دوں گا، گالی دے کے اس کی عزتیں تو اتار سکتے ہو، گالی دینے میں مزہ آ رہا ہے، مگر ادھر تیری موت کا ذائقہ تیار ہو رہا تھا۔ معذرت کے ساتھ میں اس سے زیادہ تشریح نہیں کر پاؤں گا آج، چونکہ میری زبان بڑی کڑوی ہے، میں امام جمعہ ہوں، میری زبان بڑی کڑوی ہوں، میں نہیں چاہتا پہلی ہی ملاقات میں تعلقات خراب ہو جائے۔ ہاں زیادہ دن ویسے بھی عوام کے تعلقات مولویوں سے اچھے رہتے نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو جیسے جیسے تو توجہ میری طرف متوجہ رہیے گا، جیسے جیسے تیری حیات کا ذائقہ تیار ہو رہا تھا ادھر دوسری طرف تیری موت کا ذائقہ تیار ہو رہا تھا۔ اب جملہ کہنے دیجئے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، مجھے دوسرے خیمے میں بھی داخل ہونا۔ تو اب مان تو لیجئے اتنی دیر مجلس پڑھنے کے بعد اگر پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے تو اللہ نے موت کے ذائقے بھی 7 ارب رکھے ہیں۔
मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मेरे एक नफ्स को उठा ले जाइएगा। अगर दुनिया में 7 अरब की आबादी है तो मौत के जायके भी 7 अरब है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी मौत मीठी से मीठी बना लो, कड़वी से कड़वी बना लो। हाँ, चलते चलते रुखसती के वक्त एक जुमला कह दो ताकि आपको मजलिस याद रह जाए। एक जुमला जब इस जायके पे पढ़ा जाता है कि मौत का जायका, मौत का जायका, तो एक जुमला इस मजलिस में पढ़ दिया जाता है। वो जुमला आपका भी बारहा सुना हुआ है कि दुनिया को मौत का जायका पता न लगता अगर मैदान करबला में जनाब कासिम ने मौत का जायका न बताया होगा। पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? ये जुमला आपने भी सुना है, हमने भी पढ़ा है कि दुनिया को पता न लगता मौत का जायका अगर जनाब कासिम ने मौत का जायका न बताया होता। गलत है ये बात। नौजवानों, मेरा जुमला सुनिएगा, गलत है ये बात, गलत पढ़ी जाती है ये बात कि दुनिया को पता न लगता मौत का जायका अगर जनाब कासिम ने मैदान करबला में मौत का जायका न बताया होता। अरे मैदान करबला में जनाब कासिम ने अपनी मौत का जायका बताया है, हमारी मौत का नहीं बताया। सलावत पढ़े मोहम्मद। कैसे पढ़ा गया ये जुमला कि दुनिया को पता न लगता मौत का जायका अगर जनाब कासिम ने मौत का जायका न बताया? गलत है ये बात। जनाब कासिम ने अपनी मौत का जायका बताया है। इस मुख्तसर सी बात पर मैं मुतमईन हुआ कि जनाब कासिम ने अपनी मौत का जायका बताया है, हमारी मौत का जायका नहीं बताया। इसलिए कि सवाल पढ़े हुसैन इब्न अली का, हुसैन का जुमला है कैफल मौत इंदक, बेटा बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तुम्हारे नजदीक जनाब कासिम ने क्या जुमला कहा? ओ हल्लिया में चचा जान, मेरे नजदीक, हमारे नजदीक नहीं, मेरे नजदीक मौत शहर से ज्यादा चीरी है। अब ये नौजवान ये कहेंगे फिर ये जुमला क्यों पढ़ा जाता है? हाँ, ये जुमला इसलिए पढ़ा जाता है ताकि नौजवानों को समझ में आ जाए कि अगर इंसान अपनी मौत के जायके को बनाना चाहे तो मौत का जायका शहर से ज्यादा शीरी भी हो सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। मौत का आप अगर आप थोड़ा थोड़ा सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले आइए ताकि जो बाद में आने वाले लोग हैं उनको परेशानी न हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। लिहाजा मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, मौत का जायका अल्लाह ने ही बना था। अल्लाह ने मौत बिना जायके के हमारे हवाले कर दी। मौत में जायका तुम बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे। अगर इजाजत है तो एक जुमला कहूं, और जब इंसान अपनी मौत के जायके को तैयार कर लेता है तो फिर वो मौत से नहीं डरता। जो समझ गए सुभान अल्लाह, जो नहीं समझे कोई भी ना शिकवा नहीं है। जब इंसान अपनी मौत के जायके को बना लेता है वो इंसान फिर मौत से नहीं डरता। जो इंसान अपनी मौत के जायके को तैयार कर लेता है वो फिर कभी मौत से नहीं डरता। अगर यकीन आए तो देख लीजिए, पूरी दुनिया मिल के कह रही थी कि ये तो बंगलों में छुप गए, ये किसी पोशीदा जगह में छुप गए, ये तो किसी महफूज जगह में छुप गए, मगर रहबर में आगे ना, घबराओ नहीं, अगले जुमे की नमाज आप पढ़ाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। क्या है? या
दुनिया मिलके कह रही थी कि ये बनकर में छुप गए। माजरत के साथ इसी खेमे का एक तबका भी बोल रहा था, इन्हें क्या हो गया, ये क्यों नहीं बोल रहे, ये कब खामोश रहेंगे। अजीब बात है, जिनकी घर में नहीं चलती वो कह रहे हैं रहबर क्यों नहीं बोल रहे। अरे किसने कहा है कि आप उन्हें रहबर मानिए, आप रहबर बन जाइए। 4 लोगों के मुखिया हो, तुम्हारी घर पे नहीं चलती। ये जुमला बड़े मुहक्किक है कि जिसकी कहीं नहीं चलती उसकी मस्जिद में पेश इमाम पे चलती है। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, मैं इस दौर की बात नहीं कर रहा हूं। अब तो मीडिया के सुर ही बदल गए, अब तो सहाफियों के मिजाज बदल गए। मैं इस जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। ज्यादा ना पढ़वाइए, मेरा वक्त तमाम हो गया। ये उस जमाने की जो बात है जब पूरी दुनिया कह रही थी कि ये छुप गए, ये किसी महफूज जगह पे गए, मगर मर्द मुजाहिद आने के बाद कहते हैं अगले जुमे की नमाज हम पढ़ाएंगे। नौजवानों, इस जुमले की अगर अजमत और अहमियत का अंदाजा कर लिया तो एक शुक्र का सजदा जरूर करोगे। हमने अभी भोपाल वगैरह में ये जुमला पढ़ा है, हालांकि यहां पे नहीं पढ़ना, कि अगर अल्लाह की नेमतों को गिनोगे तो अल्लाह की नेमतों को 2 या 2.5 सफों से ज्यादा नहीं गिन पाओगे बस। मगर कुरान कह रहा तुम अल्लाह की किस किस नेमतों को गिनाओगे। जुमला पहुंच रहा, मुझे उस तरफ नहीं जाना, मगर जुमला पहचाना आपने। रहबर ने आते के साथ ही क्या कहा, रहबर ने अपना बताया। नौजवानों, इस जुमले को सुनिएगा और पूरी दुनिया मोबाइल की सूरत में तुम्हारी जेबों में मौजूद है। मेरे मिंबर से उतरने के बाद तहकीक कर लीजिएगा, तब मेरे हक में दुआ दे दीजिएगा। रहबर आते हैं और वली फकीह आके जुमला कहते हैं, परेशान ना हो, अगले जुमे की नमाज हम पढ़ाएंगे। रहबर ने अपना बताया, हमारा नहीं, अपने बारे में बताया कि अगले जुमे की नमाज हम पढ़ाएंगे। अगर दुनिया की किसी जबान ने तर्जुमा करा हो तो मुझे बता दीजिए कि रहबर ने ये कहा हो अगले जुमे की नमाज हम पढ़ाएंगे। इतने इधर से आ जाओ, इतने इधर से आ जाओ, इतने इधर से आ जाओ। रहबर ने किसी को नहीं बुलाया, अपना बताया, हमारे अगले जुमे की नमाज पढ़ाने। रहबर बताना चाह रहे हैदर करार की औलाद, करार की औलाद अगले जुमे की नमाज हम पढ़ाएंगे। अगले जुमे की नमाज हम पढ़ाएंगे। अपना बताया, हमें नहीं बुलाया, अपना बताया अगले जुमे की नमाज हम पढ़ाएंगे। अब नौजवानों, माजरत के साथ एक जुमला, चूंकि ये जो हालात चल रहे हैं ना, इन हालात से मुंह नहीं फेरा जा सकता। आप ये ना सोचिएगा कि तकरीर यहां से वहां कैसे चली गई। ये भी एक जिम्मेदारी है हमारी कि हमारी कौम को समझाया जाए कि रहबर भी है और नेमते परवरदिगार भी है। ले जाइए जुमला अपने घर पर, काम आएगा आपके। इस जुमले पे बात देते देते सुबह हो जाए मगर जुमले का हक ना अदा होगा। इस नेमत परवरदिगार पे कभी किसी जवान ने सजदा किया कि हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा कि जिसको वली फकीह कहा जाता है। रहबर ने बताया कि अगले जुमे की नमाज हम पढ़ाएंगे। रहबर जब खुतबा देने के लिए खड़े हुए, नौजवानों आपके सामने है, तो तारीख का ये एक कड़वा सच है कि रहबर ने इधर जुमे का खुतबा देना शुरू किया। ये रिकॉर्ड बना पूरी दुनिया का, जाके देख लीजिएगा कि आज तक इतने लोगों ने एक ही वक्त में एक आदमी की इतनी देर तक बात नहीं सुनी। नौजवानों, शुक्र का सजदा करो। मैं कुछ जुमला कहना चाह रहा हूं, ये रिकॉर्ड बना पूरी दुनिया का कि आज तक इतने लोगों ने इतनी देर तक एक आदमी को इतनी गौर से नहीं सुना जितनी गौर से रहबर का खुतबा सुन रहे थे। अरे रहबर इधर खुतबा दे रहे थे, हर एक आदमी कान लगा के सुन रहा था। शिया भी सुन रहा था, सुन्नी भी सुन रहा था, देवबंदी भी सुन रहा था, बरेलवी भी सुन रहा था, हिंदू भी सुन रहा था। अब तो
हद है, यहूदी भी सुन रहा था। हद तो हद है, यहूदी भी सुन रहा था। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, पूरी दुनिया रहबर का खुतबा सुन के, रहबर ने जमाने को बताया, खुतबा हमने पढ़ दिया, इंशाअल्लाह नमाज इमाम आगे बढ़ाएंगे। सलावत बढ़े मोहम्मद। नौजवानों याद रखना, बस मेरा वक्त तमाम हो गया। नौजवानों, जब इंसान अपने मौत के सायके को तैयार कर लेता तो फिर वो मौत से नहीं डरता। यकीन ना आए तो देखिए, मैं एक हल्का सा जुमला कहूं, चूंकि ज्यादातर मजमा नौजवानों का है तो ये जुमला पहुंचना चाहिए कि आप तारीख का एक ये कड़वा सच भी पढ़ें कि जब इंसान अपनी मौत के जायके को तैयार कर लेता है तो फिर वो मौत से नहीं डरता। अगर यकीन ना आए तो देख लीजिए कि जब इंसान मौत का जायका तैयार कर लेता है तो फिर दुनिया उससे डरती है। दुनिया उससे डरती है, वो नहीं डरता किसी से। यकीन ना आए तो एक मंजर दिखाऊं आपके सामने। शहीद मकामत सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत से ठीक एक दिन पहले, हसन नसरुल्लाह की शहादत से एक दिन पहले एक वीडियो वायरल की गई, समाज और माशरे के नौजवानों के मोबाइलों में पहुंची कि दुनिया के तमाम ममालिक के प्रेसिडेंट यूएनओ में इकट्ठा हुए और दुनिया का हर एक मुल्क का प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ बोल रहा था। उन तमाम ममालिक के प्रेसिडेंट में इसराइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू, अल्लाह इसके खानदान पे लानत करे, अल्लाह इसको वासिले जहन्नम करे। नौजवानों, घबरा के इलाही आमीन ना कहा करो। मुझे ताज्जुब है उन जाकिरीन, उन खुतबा के ऊपर कि जो कहते हैं कि मौला हम मैदान करबला में होते तो ये कर देते, और अब ऑनलाइन होकर नेतन्याहू को मुर्दाबाद इसलिए नहीं कह रहे, हमारा बाहर का अशरा रुक जाएगा। इसको बहका रहे हो, कहां चल रहे हो? खुलवाइए ना। मैंने कहा ना मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, तवज्जो चाहो तो जुमला सुन लीजिए। जब इजराइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू उस यूएनओ की मीटिंग में खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो आपने देखा होगा सब लोग उठ के चले गए। देखा होगा वो वीडियो आप तक आई होगी। तो अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, इस बात को घर तक ले जाइएगा और तहकीक करिएगा कि ये हो क्या रहा। तो नेतन्याहू खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने पूरी दुनिया को नक्शा दिखाया कि ये नक्शा है। उस नक्शे को दो कलर से उसने भर रखा था, एक को ब्लैक से भर रखा था और एक को वाइट या सब्ज रंग से भर रखा था, हरे रंग से। नौजवानों सुनना, ये जो काला हिस्सा था इसमें इसने दो मुल्क लिख रखे थे, एक का नाम था इराक, एक का नाम था ईरान। दूसरा जो मुल्क था, दूसरा जो हिस्सा था, उसमें सारे मुल्क इसने लिख रखे थे, उर्दन, मिस्र, ट्यूनिस, हद है सऊदी अरब, सारे मुल्कों को इसने उस जगह पे घेर रखा था। और इस ब्लैक हिस्से में दो मुल्क थे, एक ईरान और इराक। और नेतन्याहू दुनिया को नक्शा दिखा के कह रहा था कि याद रखना, हमें खतरा इस दुनिया में अगर किसी से है तो इन्हीं दो मुल्कों से है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं नौजवानों, ये वीडियो है आपके सामने, मैं कोई खिताबत में लाठी थोड़ी चला रहा हूं, मैं तो हकीकत से पर्दा उठा रहा हूं ताकि नौजवान पहचाने इस नेमत परवरदिगार को। नेतन्याहू कहता है कि हमें खतरा किसी से नहीं है, हमें खतरा दो मुल्कों से है, एक ईरान से है, एक इराक से है। करीब आइए तो एक जुमला कहूं, मतलब समझे। नेतन्याहू ने जमाने को बताया कि जिन जिन मुल्कों में मुल्कियत की हुकूमत है उनसे हमें खतरा नहीं है। आज बात पहुंच जाए मेरी आग तक, ले जाइए घर तक ये पहुंचा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप
आप जाके उठा लीजिएगा वो तकरीर और वो उसकी स्पीच। वो कहता है हमें खतरा इन मुल्कों से नहीं है, हमें खतरा या तो ईरान से है या इराक से। जिन मुल्कों को उसने अपने खेमे में रखा उन मुल्कों की तारीख उठा के देख लीजिए। ट्यूनिस में मुल्कियत की हुकूमत है, मिस्र में मुल्कियत की हुकूमत है, सऊदी अरब में मुल्कियत की हुकूमत है। वो ये कह रहा है हमें मलूकियत से खतरा नहीं है, हमें इन दो मुल्कों से खतरा है। अब समझे नौजवानों, नेतन्याहू जमाने को बता रहा है हमें मलूकियत से खतरा नहीं है, हमें मरजइयत से खतरा है। सलावत रहे मोहम्मद। हमें खतरा मुल्कियत से नहीं है, हमें खतरा मरजइयत से है। करोगे ना एक शुक्र का सजदा मेरी मजलिस के बाद? एक के हमें खतरा मलूकियत से नहीं है, हमें खतरा मरजइयत से है। और नौजवानों ये भी सुन लो, चलते चलते ये जो जंग है ना दो ही लोगों की है बस, बाकी तो पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। एक तरफ है मरजइयत के जिसको आप मजहब तशय्यो कह सकते हैं, और एक है इजराइल यानी यहूदियत। एक तरफ यहूदियत है, एक तरफ तशय्यो है। बस दो ही लोगों की जंगें हैं बस। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं नौजवानों, इस पे चलते चलते सोचिएगा कि ये दो ही क्यों लड़ रहे हैं, ये दो ही क्यों लड़ रहे हैं। जैसे बड़े उलमाए अहले सुन्नत के बड़े मुहक्किक ने एक जुमला लिखा था कि जब किसी ने ये लिखा कि जब सारे लोगों ने यजीद की बैअत कर ली थी तो इमाम हुसैन को क्या जा रहा था बैअत करने में। जब सब ने कर ली थी तो इमाम हुसैन भी कर लेते। तो उलमाए अहले सुन्नत के बड़े आलिम ने कहा कि सवाल ये नहीं कि सब ने कर ली थी तो हुसैन भी कर लेते, सवाल ये है जब हुसैन ने नहीं की तो इन्होंने कैसे किया। अल्लामा फखरे राजी ने भी लिखा, बाकायदा उलमाए अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम ने ये जुमला कहा कि सवाल ये नहीं कि सबने कर ली थी, सवाल ये कि हुसैन ने नहीं की तो इन्होंने कैसे कर ली। क्या ये ख्वाजा अजमेरी के उस जुमले को भूल गए, दीन हस्त हुसैन भी बना। खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बात बहुत आगे चली जाएगी। मेरे अजीजों, सवाल ये है कि ये दो ही क्यों लड़ रहे हैं, एक तरफ यहूदियत एक तरफ तशय्यो कह ले या मरकजियत कह ले, बस बाकी तो सारे ममालिक तमाशा देख रहे हैं बस। चूंकि जंग है ही दो लोगों की बस। आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जंग है ही दो ही लोगों की बस, इससे ज्यादा जंग तीसरे आदमी की है भी नहीं। एक तरफ है यहूदियत एक तरफ है तशय्यो, ये दोनों लड़ क्यों रहे। असल में मामला यह है इन दोनों मजहबों की बुनियादों को पढ़ो तो समझ में आ जाएगा ये लड़ क्यों रहे। असल में मजहब तशय्यो के किसी भी किताब के हर सफे का ये अकीदा है कि जब हमारा इमाम पर्दे से आएगा तो उसकी हुकूमत मुल्कों पे नहीं पूरी दुनिया में होगी। ये मजहब तशय्यो का अकीदा है। मजहब तशय्यो ये कहता है कि जब ज़हरा का लाल पर्दे से आएगा तो उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पे होगी, मुल्कों पे नहीं होगी। अब आप यहूदियत के नक्शे को उठाइए, यहूदियत की यही जुमला कह रहा है कि नील से लेकर फुरात तक हमारी हुकूमत होगी। ये भी कह रहे हैं हुकूमत हमारी होगी, ये भी कह रहे हैं हमारी हुकूमत होगी। कुरान आगे बढ़ के कह रहा है जाल हको वज़हकल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। जब हक आ जाता है बातिल समेट के चला जाता है। यही है बस। अब समझ में आए दोनों क्यों लड़ रहे, चूंकि इन दोनों का अकीदा ही यही है। वो कह रहे हैं नील से फुरात तक हमारी हुकूमत होगी। जो उन्होंने नक्शा गूगल पे वायरल किया उसको देखना नौजवान, वो भी यही कहते हैं कि हुकूमत हमारी होगी। ये भी ये कहते हैं कि ज़हरा का लाल जब पर्दे से आएगा तो ज़हरा का लाल नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा पीछे नमाज पढ़ेगा। मेरे अजीज बस खत्म हो गई बात, चलते चलते दो जुमले मसाइल के पढ़ दिए जाए ताकि मरहुमा की रूह को ईसाल किया जा सके। इस मजलिस का सवाब मेरी कौम के नौजवानों याद रखना,
जब इंसान मौत का सायका तैयार कर लेता है तो वो इंसान फिर मौत से नहीं डरता। और नौजवानों, बीबी ने मुझे किसी जिक्र के तुफैल में शहंशाह मसाइब का लक़ब दिया है। शायद उसकी वजह ये भी हो कि मैं कोशिश करता हूं कि फर्श अज़ा पर बैठने वाला हर एक बंदा एक ना एक आंसू जरूर निकाल के जाए, क्योंकि ये जो अय्याम चल रहे हैं, इन अय्याम को अय्याम फातिमिया कहा जाता है। आप समझ रहे हो? यानी ये जो रिवायत पढ़ी जाती है कि बीबी पैगंबर इस्लाम की शहादत के 40 दिन बाद, 75 दिन बाद, 95 दिन बाद बीबी इस दुनिया से रुखसत हो गई। 8 रबीउल सानी, 13 जमादुल अव्वल, 3 जमादुल सानी। इराक और ईरान 13 जमादुल अव्वल को मनाता है, वो 75 दिन वाली रिवायत को मोतबर मानता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ज्यादातर 3 जमादुल सानी को मोतबर मानता है, जो अभी 4 या 5 दिसंबर में आने वाली है। नौजवानों, तारीख कोई भी मोतबर हो, इसको किसी वक्त मौका मिला तो बतलाएंगे कि बीबी की 3 मौत की शहादतों के जो ऐलानात हैं कि 40, 75, 95 उसकी भी एक जगह, वो किसी दिन आएगी बात तो बतलाएंगे। नौजवानों, याद रखना, सवाल ये नहीं है कि बीबी पैगंबर इस्लाम की शहादत के बाद 40 दिन जिंदा रही। सवाल ये नहीं है कि बाबा के इंतकाल के बाद 75 दिन बीबी जिंदा रही। सवाल ये नहीं है कि बाबा के इंतकाल कुलमलान के बाद बीबी 95 दिन इस दुनिया में जिंदा रही। सवाल ये होता है कि पैगंबर इस्लाम की शहादत के बाद बीबी जिंदा कैसे रही। नौजवानों, गिरिया में कमी न करना। मैं चाहता हूं कि किसी हद तक जुमले मसाइल के आप तक पहुंच जाए। सवाल यह है कि बीबी जिंदा कैसे रही। खतीब मसाइल पढ़ रहा था बीबी के, पूरा मजमा रो रहा था, पूरा मजमा रो के उठ के चला गया। एक नशे में एक नौजवान तब भी रो रहा था सजदा। लोगों ने सोचा कि ज्यादा बीबी के मसाइल दिल को लग गए होंगे इसलिए रो रहा। लोग बाहर चले गए, तबर्रुक लेके घर जाने लगे, और जब अंदर आए तब भी वो रो रहा। लोगों ने सोचा कि रो रहा है, गुस्सा दे रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। तारीख कहती है कि जब बहुत ज्यादा देर हो गई और मानियान मजालिस ने फर्श अज़ा को समेटना शुरू किया तो देखा अब भी वो नौजवान रो रहा। तो जो इमाम बारगाह के मुतवल्लियान जिम्मेदार थे वो जवान के करीब जाके कहने लगे, देखो रोना तो वाकई बीबी की शहादत पे ऐसे ही चाहिए जैसे तुम रो रहे हो, मगर गिरिया हमने भी किया है, मगर इतनी देर गिरिया हमने भी नहीं किया जितनी देर से तुम रो रहे हो। तबर्रुक लग गया, सब घर चले गए, फर्श अज़ा पीछे उठाने लगे हैं, अब भी तुम रो रहे हो। उसको नौजवान कहता असल में मामला यह है कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। तो नौजवान कहता है असल में तुम पहचानते रही हो, मैं हड्डियों का डॉक्टर, जानते हो मैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता हूँ। चूंकि मैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता हूँ, लिहाजा मुझे पता है जब किसी की टूटी हुई हड्डी टूट जाती है तो उसको दर्द कैसे होता है। मौलाना साहब अभी मसाइल में पढ़ के गए हैं कि पैगंबर इस्लाम की शहादत के 40 दिन बाद, 75 दिन बाद, 95 दिन तक बीबी जिंदा रही। सवाल यह है कि बेकिसी की अगर हड्डी टूट जाए तो जब भी वो हड्डी हिलती है उसे बड़ी तकलीफ होती है। मुझे यही सोच के रोना आ रहा है कि हड्डी कब टूटती है तो नहीं हिलता, मगर जब किसी की पसलियां टूट जाए तो जब भी वो सांस लेता है उसको दर्द होना, नहीं सी बात में रो रहा। दीदी इतने दिनों आप कैसे जिंदा रही। अजर को बदल लो, ऐसे ना रोइए, ऐसे ना रोइए। अगर रोना ना आए सर को नीचे कर लिया करो, सर को नहला लिया करो। इतनी बुलंद आवाज से रो के आवाज जन्नतुल बकी तक जाए। आज की मजलिस का पुरसा फातिमा को नहीं देना, आज की मजलिस का पुरसा ज़ैनब को देना है, उम्मे कुलसूम को देना है।
اے نوجوانوں سنبھل کے بیٹھنا. آج ہم ایک ماں کا ذکر کر رہے ہیں چونکہ مرحومہ کی سال ثواب کی مہینے سے لہٰذا میں مسائل بھی ماں کے پڑھ رہا ہوں. نوجوانوں یاد رکھ لینا جب کسی کی ماں کی مجلس پڑھی جاتی ہے تو کوئی آئے نہ آئے اولادیں ضرور آتی ہے. کوئی آئے نہ آئے اولادیں ضرور آتی ہے. آج جب ہم فاطمہ کو گریا کریں کوئی آئے نہ آئے سارے امام آئے ہوں گے. کہیں محمد باقر بیٹھے ہوں گے, کہیں سید سجاد بیٹھے ہوں گے, کہیں زین العابدین بیٹھے ہوں گے. اجرکم اللہ. آپ بہت رو چکے, بس آخری جملہ منبر خالی کر رہا. ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے. مرحومہ کے اعزاء اقارب رشتہ دار مجلس میں آئے ہیں. دل کھول کے رویا کرو, رونے میں شرمایا نہ کرو. اگر رونا نہ آیا کرے تو سروں کو نیچے کر لیا کرو اور خالق سے دعا کیا کرو کہ بی بی اتنا آنکھوں میں پانی بھرتے جب بھی نکلے دمام فاطمہ نکلے. تاریخوں میں ملتا ہے بانیان مجالس بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی مرحومہ کا انتقال ہوا مرحومہ کی خبر موت سب تک پہنچا دی گئی. سارے لوگ مرحومہ کے مکان پر پہنچے ہوں گے. سب نے دست شفقت پھیرا ہوگا. مرحومہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو گلے سے لگایا ہوگا. ہر ایک آدمی یہی تو کہہ رہا ہوگا بچوں صبر کرو صبر کرو صبر کرو. جب جنازہ اٹھا ہوگا, جنازہ قبرستان گیا ہوگا, تو جب واپس آیا ہوگا تو محلے والے خاندان والے مرحومہ کے گھر پہ پہنچے ہوں گے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا ہوگا دیکھو 3 دن تک کھانا ہم بھیجیں گے, تم اپنے گھر کھانا نہ بنانا. اگر ایسے رو گے تو میں پڑھ چکا مسائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے سماج اور معاشرے میں. اگر کسی کا مرنے والا چلا جائے تو 3 دن تک سویام تک کھانا کون بھیجتا ہے؟ محلے والے, خاندان والے, انجمن والے. ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ تم اپنے مرنے والے کو رو, کھانا ہم بھیجیں گے, تم اپنے گھر میں چولہا نہ جلانا. میں نے پوچھا تمہیں یہ طریقہ کس نے بتایا ہے کہ اگر کسی کا مرنے والا چلا جائے تو 3 دن تک اس کے یہاں کھانا بھیجا کرو؟ ہر ایک آدمی کہے گا کہ مولانا صاحب ہمیں یہ طریقہ محمد نے بتایا ہے. ارے اسی بات کا تو ہونا ہے جس محمد نے یہ اصول بنایا تھا. اسی محمد کے جانے کے بعد 3 دن کے بعد فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھنے لگا. اب جو قریب آ کے دیکھا چولہے کا دھواں نہیں تھا, ڈرے فاطمہ میں آگ لگڑی آئی گٹا. اجرکم آپ رو چکے, بہت رو. بس 2 جملے پڑھوں گا منبر سے نیچے آتا. آپ کی مرضی, آپ جیسے چاہیں ویسے رو. کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جس کو جتنی محبت ہوگی بیوی سے وہ اتنا چیخ مار کے روئے گا. یاد رکھنا اپنی ماں سمجھ کے رویا کرو, اپنی ماں سمجھ کے رویا. جتنے بھی امام گزرے ہیں ہر ایک امام کا کوئی نہ کوئی لقب ہے. جانتے ہو ہماری بیوی کے القابات میں 2 لقب بڑے عجیب ہیں. ایک بیوی کا لقب ہے مظلومہ. اگر میں ترجمہ کرنے پہ آ جاؤں تو ماتم رکھا ہوگا. بیوی کا ایک لقب ہے مقہورہ. میم کاف لکوا ہے واو رے گول مقہورہ. مقہورہ یہ کسی امام کا لقب نہیں ملا, بیوی کو لقب ملا. مظلومہ تو آپ سن چکے ہیں. مقہورہ بتاؤ, مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ مقہورہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ظلم ایک آدمی سب مل کے کر رہے ہیں. اللہ آپ کے لیے میں پڑھ چکا مسائل. بیوی کا لقب مقہورہ, جس کے اوپر ایک ظلم نہ کرے سب مل کے کرے. ارے فاطمہ کے دروازے پر سب نے مل کے جب حملہ کیا تو بیوی نے ایک جملہ کہا فضا میرا محسن مارا گیا. اب ان جملے کو سن لیجیے مجلس مکمل ہو جائے. جیسے بیوی نے یہ جملہ کہا فضا میرے محسن اس دنیا سے مارا گیا, آپ نے کیا سنا؟ بیوی نے یہ جملہ کہا کہ فضا میرا محسن مر گیا. غلط ہے یہ بات. بیوی نے یہ جملہ نہیں کہا فضا میرا محسن مر گیا, میرا محسن شہید ہو گیا. جملہ سنیں گے فضا ان لوگوں نے میرے محسن کو مارا ہے. اب
اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہ کر چکوں گا۔ اے فضا، ان لوگوں نے میرے محسن کو مارا، یہ کہنے کے بعد بیوی نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور آواز دی، یا مہدی، اے میرے بیٹا مہدی، جلدی سے آؤ، محسن کے پھول کا بدلہ۔ غربتا وعدیہ وحسینہ وسکینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم قضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب مرحومہ کی روح کو عنایت فرما۔ مرحومہ کی طرف سے تمام کار خیر ہونے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مرحومہ کے تمام عزیزوں و اقربا کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار بطفیل چاہتا معصومین بصدق آل محمد حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار بطفیل چاہتا معصومین بصدق آل محمد مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ گلبین فاطمہ بنت حیدر کرار کی روح کو ایصال فرما۔ ان سوروں کا ثواب اور اس مجلس اعزا کا ثواب چاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ اس کے عوض میں جو ثواب حاصل ہو گلبین فاطمہ بنت حیدر کرار کی روح کو ایصال کیا۔